नमस्कार, आप देख रहे हैं रिक्राइम न्यूज। मैं न्यूज शर्मा गुरुजी पल पल की खबरों के साथ। आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता से, क्या है आज की खास खबर। कौस्तुभ राघव नेशनल शूटिंग के लिए क्वालिफाई। जयपुर, राजस्थान में चल रही 48वीं उत्तर प्रदेश शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौस्तुभ राघव सबसे कम उम्र की अपनी सब यूथ कैटेगरी में 361 अंक प्राप्त कर नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। बता दें कि कौस्तुभ राघव जिला बुलंदशहर के गांव पड़ा कमौना के रहने वाले हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। गांव कमौना भी अपने आप में ऐतिहासिक गांव है जो बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जन्मस्थली और कर्मभूमि रहा है। गांव कमौना की मिट्टी मिट्टी लड़ी है, ऐसी चर्चा एक समय में लंदन तक होती थी। अपनी इस सफलता का श्रेय कौस्तुभ राघव अपने शुभचिंतकों, गुरुजनों और बुजुर्गों को देते हैं। उनके परबाबा स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह उपनाम बहरी सिंह तूफान देश के बड़े क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ पीआरडी प्रांतीय रक्षक दल के कमांडर और अच्छे निशानेबाज रहे। कौस्तुभ राघव के पिता अश्वनी ठाकुर बाबा डॉक्टर अशोक कुमार राघव और पूरा परिवार हमेशा से देश और समाज के प्रति समर्पित रहा है। कौस्तुभ की सफलता पर आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। गांव और क्षेत्र के लोगों में उनकी सफलता को लेकर खुशी का माहौल है। पेश है उदितराज न्यूज से वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शर्मा गुरुजी की खास रिपोर्ट। Hello guys, how are you? Today we are here with a new sensation of village Kamona, and we are here to discuss about the achievement of Mr. Kaustubh Raghav. You want to know that who is the Kaustubh Raghav? Kaustubh Raghav is a student of class 9 who have got qualified in the shooting in very first attempt with his self dedication and self hard work and motivation. So we will discuss about his achievement, how he will able to qualify for national. Hello Kaustubh. Hello, sir. Can you tell me something about your achievement? How you are able to achieve this milestone? Yeah, so this is a big milestone for me, and I've worked hard for this. I've been dedicated, self motivated, and disciplined throughout the preparation of this. And as I always want to, like when I get in shooting, I want to crack this in first attempt, and I did from my hard work. So can you tell me something about your score? What was your score in your shooting? Yeah, as I'm an NR shooter, it's a variety of shooters. So I have got 361 from. Oh, that's great. Yeah. On that score you can qualify for the Olympic as well. So all the best for your success, and that's great attempt. Thank you. So where are you looking for yourself in upcoming time, in 3 to 4 months? Where are you looking for yourself, So after this, or where you want to be? What is your expectation and what is your ambitions? We just want to know. so as the just state passed and I got this rank. After this, as I knew that nationals competition will be starting in 1 or 2 months, and yeah, I've been preparing for that, and I will do my best for that. And my ambition or inspiration that where I want to be in next few years is Olympics, obviously. So that's the biggest, target. So that's great. If you want to go for the Olympic, then you will get a tough competition from the others, because the level of the Olympic itself is a very good, very tough for others. So if you want to go for the Olympic, then you have to be work hard. Definitely, I will work hard, and if I deserve it, and my hard work is enough for that, then definitely I will get to that. Or it is not, then it will be an experience for me
or a good journey which I enjoyed and worked on it. If you want to achieve something in Olympic, then with your hard work you have to be consistent, you have to be self motivated, or you have to do something extraordinary to achieve your goal. So all the best for your future. Thank you, Kaustubh. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, Davik, for being here. Do you want to say something about your brother achievement? Yeah, I am very proud of my brother. I think he should go to the Olympic, and he will definitely got the medal of Olympic. That's great. We want some sensation news from you as well, Davik. So all the best for you as well. Yeah. So do work hard and do some miracle for us, for your brother and for your parents. Thank you. Thanks a lot. Welcome. Thank you, sir. हेलो दोस्तों, आज हम मिलने आए हैं मिस्टर कौस्तुभ राघव से, जो कल से हमारे यहाँ एक चर्चा का विषय बने हुए हैं, और वो इस चर्चा का विषय बन पाए हैं बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन और उनके हार्ड वर्क और सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा। वो चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने एक बहुत कम टाइम में शूटिंग के अंदर नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है, पहला, और दूसरा उन्होंने नेशनल के लिए क्वालिफाई तो किया है, और उन्होंने उसमें जो स्कोर अचीव किया है, उनका स्कोर इतना था कि वो इजीली ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर सकते थे। तो आज हम उनसे मिलते हैं और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उनका जो ये अचीवमेंट रहा है वो किस तरीके से पॉसिबल हो पाया। हेलो कौस्तुभ, कैसे हैं आप? हेलो, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस हम बढ़िया हैं। मैंने आपके बारे में लोगों को बता दिया है। हम बस इतना पूछना चाहेंगे कि आप इतने कम टाइम में इस माइलस्टोन को कैसे अचीव कर पाए और इतने अच्छे स्कोर के साथ। तो ये समय कम था, लेकिन हाँ, मैं चाहता था कि मैं ये करूँ, और मैंने इसके लिए मेहनत भी करी। मैं डिसिप्लिन रहा और कंसिस्टेंट रहा, अपने इसके लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहा, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो मैंने रखा। और मैं सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे सपोर्टर्स रहे, मेरी फैमिली, वेल विशर्स, मेंटोर्स, वो सभी। तो आपने इतने कम टाइम में नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में अब अपने आप को आप शूटिंग में कहाँ पर देखते हैं और किस तरीके से उस माइलस्टोन को आप अचीव करेंगे, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। जी, शूटिंग में अब मेरे, जैसे कि आपको पता है कि नेशनल्स होंगे, जिनके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा और अपना बेस्ट दूंगा मेहनत में कि मेरे नेशनल में भी अच्छे आएँ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे अपने देश का नाम रोशन करूँ और आगे बढ़ाऊँ। तो थैंक यू कौस्तुभ, एंड वी वांट टू सी यू इन दी ओलंपिक। और हम चाहते हैं कि आप हमारे देश के लिए कुछ मेडल लेके आएँ, और वो भी मेडल गोल्ड से कम ना हो। और हम ऊपर वाले से, ऑलमाइटी से प्रे करते हैं कि आप अपने इन चीज़ों में, अपने आप इस एफर्ट में ज़रूर सक्सेस पाएंगे, और आप हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए आप एक मेडल लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट कौस्तुभ। अब हम मिलते हैं कौस्तुभ के फादर से, श्री अश्वनी कुमार राघव जी से। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि अश्वनी जी, इन्होंने इतने कम टाइम में इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आप यहाँ पर आए। और जहाँ तक कौस्तुभ की बात है, तो इनकी अपनी खुद की मेहनत है, और मुझे लग रहा है कि 1.5-2 महीने का इनको मुश्किल से समय रहा होगा। इतने कम समय में इन्होंने एक साथ अपने आप को नेशनल में क्वालिफाई के लिए अपने आप को खड़ा किया, तो इनकी मेहनत है। और इनके जो मेंटोर जो रहे, जिन्होंने छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियाँ, परिवार का सहयोग, तो बच्चों के लिए सब लोग, जैसे आप मान लीजिए हमसे पूछ रहे हैं, तो परिवार के लोग तो अपने बच्चों के लिए सहयोग करते ही हैं। तो वैसे ही चाहे इनकी माँ हो, चाहे इनके बाबा हों, घर के लोग हों, इनकी मौसी मौसा, बाकी लोग, और जो भी परिवार के या शुभचिंतक लोग हैं, वो सब करते ही हैं। लेकिन मुख्य रूप से कौस्तुभ का उसमें समय से जगना, समय से सोना, पढ़ाई के साथ में जो है अपनी ये तैयारी करना, और बिल्कुल उसी समय जब ये इनका एग्ज़ाम था जयपुर में, जिसके बाद अभी ये आज लौटे हैं, तो ठीक उसी समय इनके पेपर का भी जो है, इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं,
तो एग्जाम की भी करना, आप समझिए बच्चों पर ये एक प्रकार का बर्डन रहता है, लेकिन उन सब चीज़ों को संभाल करके और उन्होंने एक अच्छा नाम अपने लिए वहाँ पर जयपुर में खड़ा किया है। तो ये उनकी अपनी मुख्य रूप से उनकी अपनी मेहनत है। तो आने वाले टाइम में आप कौस्तुभ को कहाँ देखते हैं और आप क्या देखते हैं और क्या लेके चल रहे हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कौस्तुभ से? हम चाहते हैं कि वो देश का नाम रोशन करें, केवल हमारा ही या परिवार का ही या हमारे गांव कमौना का ही नहीं, तो पूरे देश का नाम वो रोशन करें। और देश के लिए आज सबसे बड़े देश हैं हम, आज पूरी दुनिया में हमारे देश की धमक है। तो लेकिन ओलंपिक बहुत कम आ पाते हैं, तो आज सरकार ने भी खेलों को बहुत प्रोत्साहित करना, हमारे चाहे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हों, खेलों को बहुत प्रोत्साहित किया है। तो ये अपने देश के लिए गोल्ड लेकर के आए, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और हम भी ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि कौस्तुभ बहुत जल्दी हमारे देश के लिए गोल्ड लेके आए और उनके इस अचीवमेंट में उनके फैमिली में उनके सिबलिंग भी उनके साथ हैं। ये उनके छोटे भाई हैं दैविक राघव, ये उनकी बहन है आव्या राठौर, ये उनकी मदर हैं, ये उनके भाई हैं आद्विक और ये उनकी मौसी जी हैं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये थी हमारी आज की खास खबरें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। देखते रहिए उदित राय न्यूज। जय हिंद, जय भारत।